हर्षवर्धन जी, आनंद जी यहाँ. इसको थोड़ा और. You're coming in the screen? हाँ, ठीक है. Please come. विनय जी, यहाँ इधर आइए. ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने आर्टिकल्स? होना चाहिए कहाँ? शुरू करते हैं 2 मिनट. We can start. Hybrid भी करें. हाँ, वेलकम. इधर आ जाइए संदीप जी, हियर प्लीज. किसी एक दरवाज़ा को बंद करना पड़ेगा ना, नहीं तो सफोकेशन हो जाएगा. वो आर्टिकल्स लाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो पहले कर देना चाहिए. Disturbance ना हो. Oh, everything is. Yeah. Be comfortable. Okay, we can. वो आप सामने. निकल जाओ. हाँ, ये उधर आ जाइए. आपने you have come from so far. आप पीछे बैठे. सुदेश जी के यहाँ बैठे. वो चेयर. ये शशि, this is your article. So we just thought we'll distribute it सबके लिए because this forms the basis of what triggered. So we can start, I think, and we are doing it in a hybrid format. Or I wanted to say that after a long time, after a long gap, we are actually doing it physically. Throughout the pandemic period, our activities did not stop, but they obviously shifted to an offline mode, online mode. And since then, we have continued with Twitter Space. We have continued with the online mode. Really, you can have tablets as well. So I want to, at the outset, welcome everyone. This entire, this small setup, this boardroom, has been completely designed and planned. It was designed by recording in progress. Shri B.L. Santosh ji. And we in fact started off with a few programs here. We had a number of good discussions in this very place, book releases, and then COVID hit. So so we had to discontinue. Idhar aaye. Sarjana, idhar, please. And then we had to discontinue, obviously. Recording stopped. Continue, kar. So I'll be very brief in my introductory remarks because we have all come here at such a very short notice. We have gathered here to mainly listen to this very eminent panel, members of whom are with us today. Now they really don't need any introduction, but still as a formality, I would like to first welcome all of you, and some who have come after Recording a long in time, progress. and some whom I am also meeting for the first time. Most welcome. We have Shri Shashi Shekhar here with us. As his Twitter bio says, former CEO Prasar Bharati and former CEO Niti Digital. Now, many of us, I remember about a decade ago, we had some of us are here who were very active with Niti Digital. We got ourselves very actively involved with Niti Digital, writing articles, countering positions, and
very interestingly, and it's perhaps symbolic that we start the discussion today on the narrative of democracy in India. And Niti Digital was one of those vibrant platforms about a decade ago which had actually started countering false narratives, fake analysis that were deliberately made, especially regarding India, and India, especially regarding the entire so-called right narrative, which was then symbolized by the rise of Prime Minister Narendra Modi onto the national scene. And Shashi anchored that. Later on, he anchored the entire Prasar Bharati as a very successful CEO, bringing about a lot of innovations and newness, a lot of restructuring, and many things that have been given today, we take it as given today, were started during his tenure as one of the most youthful and dynamic CEOs of Prasar Bharati. Besides that, he's also a very fundamental thinker, and I think in terms of the battle of narratives, he's somebody who's always been at the forefront, like the other two panelists, in countering these false narratives that have been emanating. We have Shri Anant Vijayji, who is associate editor of Dainik Jagran. Not only that, but he is also a fundamental thinker and author. His book on Marxism, The Half-Truths of Marxism, has became a bestseller. He is a very well-known, nationally acclaimed cultural critic, cultural commentator, and a fundamental thinker on cultural issues. And where does he fit into this entire exercise that we have started today? In 2016, when the entire JNU narrative had exploded, when the entire Tukre narrative had started taking center stage, Anant Vijay was one of those who, through the foundation, on a regular basis, on a weekly basis, would churn out articles and booklets countering that, and that made an impact. So, through his writings as well as through his books, he has essentially worked to expose the so-called sepoys who have foisted a false narrative, who continue to do that. Harshvardhanji, commentator, analyst, economic thinker, YouTuber, a very popular YouTuber whom lakhs watch. He has created a niche for himself in exactly doing this, and that is countering the false narratives that keep emanating from various quarters on various issues. And both of them have done it primarily in Hindi, and that is why their reach has gone right into the grassroots as well. So I'm extremely happy and very grateful to all three of you for giving time and coming at such a short notice. This is the first in a series. We just wanted to start and test test the water, so to say. We plan to do this in a very regular basis, and because we have a number of our friends here who are very active into this work also, in their own areas, and I'm happy that they have joined us today. And we wish to do this on a regular basis so that we can at the end come out with our comprehensive analysis of the root and origin of these narratives and of what the reality in India today is. And that, I think, has to be a continuous exercise. So we start in a very modest manner and we hope to expand it in the days to come. Probably next month we'll have our next round. I just want to make a few more brief remarks. Now, the idea was the entire discussion is on this democracy in India, state of democracy in India narrative, or to put it more directly, democracy in danger in India narrative. So there is an entire industry which is thriving on this. Sandhya ji herself has written reams, I think, multi-volume can be compiled of her articles. And we look forward to hosting her revised edition of her book, which has also appeared. Now, this democracy,
Namaste, namaste. Please, Shyamji, अब इधर इधर आप इधर इधर Shyamji, इधर please. This democracy in India in danger narrative, this has we have heard it patently coming out in the last few years on a very regular basis. Now it is very interesting, and I just want to quote 2-3 points before handing over the floor. They say there is a democratic danger or there is a democratic crisis in India, the narrative says. But very interestingly, the Bennett Institute of Public Policy in Cambridge came out with a report, Future of Democracy. And it covered a period of 50 years and 25 data sources, 3,500 country surveys, 4 million respondents from 1973 to 2020. And it says that its finding, it is not our think tanks, it is not Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation or Vivekananda International Foundation saying, Bennett Institute of Public Policy, Cambridge. They are saying, over 50 years, their study is saying there is an acute crisis of democracy in the West. And then they are listing, there is a rise in democratic dissatisfaction, especially sharp since 2005. It uses the word, there is a global democratic recession, but its effects are most felt in the West. And then citizens of developed democracies have also experienced a large increase in democratic dissatisfaction. Then next report is by Chatham House, the great Chatham House, London. Nobody can question them. And it says in its report, The Future of Democracy in Europe 2020, a number of indicators point to a state of dysfunction in democracy in Europe. Satisfaction with democracy has been declining. There has been a general decline in voter turnout in many European countries, particularly among groups such as younger ones or less well-educated voters. And third and last point, Institute for Democracy and Electoral Assistance, the famous IDEA Institute based out of Stockholm, says in Asia, democracy and democratic participation has risen from 60 to 70% in the last few years. And if you remove the majority of people who are democratic in the world, if you remove India's population, then you realize where India stands. And there is an increased voter turnout in India. There is an increased women participation in democracy. There is an increased participation of the less well-educated in democracy. So my point, I just wanted in this introductory remark was only this. Their think tank says something else, but they are concocting a completely different narrative of India. Their think tanks are saying something else, and the reality in India is absolutely different. All three of you are eminent experts, you know the reality. So this is just a few points I wanted to make. So I would like to first invite Shashiji makes the keynote remarks. Yes. I would then like to invite Shashiji to start off. हाँ. यहाँ हमारे कहते हैं हिंदी में जो बोले सो कुंडा खोले आर्टिकल इन्होंने लिखा है तो I'm very happy to also have Shyamji, former Namaskar, National sir. Vice President and our very dear trustee of the foundation also to join us here. Thank you. Thank you. Namaskar and good evening. It's a privilege and honor to be here today. Thank you, Anirbanji, for the invitation. And this is my first time at the foundation, so very happy to be here. I think the topic is very timely, as you rightly pointed out, both in terms of my article and the trigger for that, the spate of other articles and commentary that we've been seeing regarding democracy. And it's kind of very odd that how this narrative has been created. Because if you look at the contrast, right, between India and the United States, recently the United States Supreme Court, overturned a decades-old verdict on abortion rights and said that there is no constitutional right to abortion.
And that's as illiberal a move that can happen. But then it is India that is being judged on this whole yardstick of liberal democracy. Similarly, I was very stunned to read about this. Someone shared this on Twitter, that there are more than 1,200 textbooks that have been banned in the United States by different school districts. So 1,200 book bans. यहाँ एक book ban होता है तो it's like the world is ended. International news. 1,200 textbook bans, right? And you made a very pertinent point, right? How democracy is kind of in the recession in the West, especially with low turnouts, and this has been going on for several years now. That their turnouts are generally low. The interest in participatory democracy is very limited. In fact, democracy there is largely a contest between vocal minorities. You have special lobbies and special groups which are very loud, and largely it is competition between them. And what we have achieved in India with electoral democracy, as you rightly pointed out, I think is stunning. Right? I mean, no other country is a billion people democracy in the planet. We are the only ones, and that's clearly something that is rankling a lot of people. The next nearest democracy, the US, is probably less than 1/3 of our population, and we are also the oldest civilization with a democratic ethos. It may not be democracy as they define it, but nevertheless, it is in our ethos. It's our legacy. And I think both these together have kind of unsettled many of them. It baffles them, it exasperates them, and our success is a repudiation of their way of thinking, their values that they profess, and what they believe is the idea of India. And this is basically an exercise about forcing their idea of India on us, and I think that is basically what it comes down to. And we as a society are quite generous and kind, right? I mean, look at what happened recently in Thailand. A minor transgression by the CNN, and they immediately cancelled their visas and halt them, right? While we had these fellows doing drone photography of funeral pyres, and we didn't do anything. So I mean, so that is about as liberal as generous and kind that we can be. But there is underlying this whole narrative, there is a very strong undercurrent of racism, and which is again evident. We've seen recently with the British Home Secretary's remarks, and the reactions to that from journalists, that how beneficial colonialism was, or how there were collaborators in India. I mean, so that mindset is what is manifesting itself in all this narrative that we are seeing. And we are also, I think, very uniquely vulnerable to these global pressures, because we have a very hostile neighborhood, neighbors who have many incentives to undermine democracy in India. In fact, the trigger to this article in the Indian Express and the earlier one in the print was this article that came in the New York Times, where this gentleman who lives in Hong Kong and then lectures India about democracy and freedom. So I was very curious, because this guy is hardly known. He gets prime space on New York Times. He earlier got a lot of articles in the Time magazine, so I was curious to know what is his background. So I went digging, and so there was this whole portfolio of journalistic work is there available on the internet, curated very well by himself. And then you look at it, his entire body of work is pro-China, starting from 2007, 2008, a whole bunch of articles, like how India is to blame for the 1962 war. And he writes an article on Hong Kong, and he basically brings in Kashmir into that, and then says and he's written a book in collaboration with an Australian professor, and they talk about how China is not authoritarian. It's wrong to describe China as authoritarian. So it's very clear that where these things are coming from. So there are neighbors who have incentives to undermine democracy in India. And also I think we are also vulnerable because there's so much of diversity, so much of disparity in this country, that there's so many fault lines that anybody can easily exploit. And being the open democracy that we are, it's very easy for these disgruntled elements to seek a global platform and to push their agenda, their interests. And we are seeing all of this manifest in this narrative. Again, all of this is well known to all of you, so I don't have to dwell too much on these aspects. What I wanted to talk about was the whole article was based on a certain analysis that we did. So I'll briefly talk about it. I know you wanted to do a more elaborate session later on. Yes. But I'll just briefly touch upon absolutely. this. Right? And let me give the background. Like you spoke about my term at Prasar Bharati. So one of the things that I realized while at DD and AAR, that our approach to tackling global media was missing something. And this became very apparent to me during early 2020. When we were literally in firefighting mode every day.
हर दिन कुछ छाप रहा था and then उसका counter लिखो, उसको कुछ narrative बनाओ and so on. And first it started with the CAA, the constitutional amendment, and Majorly. majorly, right, with all those riots and then COVID-19, especially the first few months of COVID-19 were horrible because of the kind of things that were being published by the local media. And I found that our approach was very knee-jerk and reactive. It was always defensive. We were always trying to explain ourselves every single day. Right? And somehow I felt that that was not working. That was not really addressing the core of the problem. The other thing that I observed, and again it's perhaps true even today, and all of us are probably guilty of it in some way, that on social media we tend to react a lot. And that also becomes very unhelpful and counterproductive because you can't control what everyone is saying, and most of the time the reactions are very angry. Nuance is not there on social media, it's very hard. And then so it ends up beginning to look like mass trolling, and that also is not a very productive way of engaging on these issues. So I felt that our approach needed to change here. We had to take a different sort of approach, and we have to do it in a manner where the global media takes serious attention of what we are raising as legitimate concerns, right? On the manner in which they are reporting on India and the manner in which they are projecting Indian democracy. And I felt that this requires a lot of research, data. It requires gravitas. It requires weight. So that was the trigger for this whole exercise. And so we looked at how do we analyze news items and columns that were published in major media outlets like New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Guardian, Time Magazine, and so on, and come up with some quantitative analysis, right? That both in terms of their content and also more importantly in terms of who is reading that, what kind of audience they're getting, and what are the incentives in that whole framework. So that was the background, and there was an interesting trigger to this exercise, which was an academic paper written in the 1960s by a Norwegian professor, Johan Galtung. He was one of the first ones to highlight how media tends to sensationalize negative news, and negative news-led controversies really drive media, and that has kind of become the norm across the media sector. So a large part of this analysis was around that framework, that how is playing up controversies making an impact on these different media outlets. So we looked at about 3,000 articles as part of this whole exercise, and we looked at various South Asian reporters, columnists, and picked up about 500 of those articles, and then looked at what kind of words they use in their headlines, and it's very stunning. Most common words are fear, hate, violence, mob, riot, cow, Hindu, Muslim, Kashmir. These are the most frequent. 1 out of every 5 headlines had either Hindu or Muslim in it. So they are trying to force the whole communal sort of fault lines and reinforce it in every article. The other stunning thing to us was how strongly correlated their headlines were with controversies in India and the digital traffic associated with that. And it's a fact that their audience base in the West has saturated. They're not seeing much growth in the Western markets. The biggest market for them is English-speaking India. It's a captive audience for them. So hence there is a perverse incentive for these controversial headlines. And in fact, there is a recent a new media platform that was launched called Semaphore, and their CEO had given an interview to Business Standard where he spoke about a 250 million plus global audience for English content. I think a large part of that is going to come from India, about probably 25-30%. Right. So that is the capture. And the other metric that we can see on this phenomenon is how BBC and Deutsche Welle both have invested in bureaus in India for digital, not for regular content, digital and in Indian languages. And you can see the growth. I have some numbers that I'll share. So for example, New York Times, when they were reporting on CAA and COVID-19, their India audience grew by 22%, while their global audience declined by 8%. So you can see very clearly how CAA and COVID-19 were so important. Time Magazine, similarly, 50% growth in India, 30% decline worldwide. So clear contrast.
BBC 155%. So it's just phenomenal how their traffic went up in India, especially with the manner in which they were reporting on CA riots and so on. So clearly that is the incentive for the Western media to hype up and build this narrative. The other side is, of course, the Indian origin people who work for them. To them it is a resume enhancer, it's a career stepping stone, and also they get paid more by the Western media outlets. So that is another perverse sort of incentive. Also it becomes very clear when we look at the kind of people they are looking for. So New York Times had that job profile that they advertised on their website, where they give a very clear indication of the kind of people they're looking for. Someone who's going to build on this anti-Modi narrative. So it's not even, there's no pretense left anymore, right? So I think that's, these are all fairly well known, maybe not so much on the media stats, but otherwise generally we all know this. But also I think there's another angle to it. I don't know how many of the foreign correspondents, for example, will speak to an Anant Vijay or read his columns. Go to Dainik Jagran or Harshvardhan, right? So they only engage with the English-speaking, Delhi-based or Mumbai-based. They have very little understanding of Indian languages or Indian media across the country. So clearly their perspective is very narrow. And all of this manifests in these democracy indexes and freedom of press indices that we see, right? Because their methodology is largely dependent on what they call country experts. And the manner in which these country experts are recruited is very opaque. We have no idea who those people are, and they are paid. So these are not even like independent sort of individuals. These are individuals who have an incentive for doing that kind of work. So I looked at one of the methodologies quite closely by VDEM. I think it's the same institute that you were referring to in Stockholm. Yes. So their methodology involves around 6 to 7 country experts. But they say that in several cases, one expert reads multiple countries. So you not only, if you take a diverse country like India, you may have a guy who probably barely understands the country, who's going to judge you on the basis of that. Also, the whole focus of their statistical rigor is trying to compensate for the biases of these individuals. So they have 6 or 7 country experts. How do they model the statistics where their bias is reduced? So their whole focus is just that. And what we don't know is, how many of them are based in India, how many of them have an understanding of India. We have no clue on any of that. Also, how can you have the same number of experts for a billion people democracy, and democracy is probably the size of a South Delhi municipal corporation, right? I mean, clearly there's a scale problem there. And if you look at the kind of questions, they're very subjective, right? And it's all perception based. So for example, if you ask, are more journalists being arrested in India? Probably they'll say yes, but then on the scale of billion, I mean, it is not even a fraction, right? It's probably third decimal or fourth decimal. It's nothing. So the model does not have any aspects to normalize for a large democracy versus a small democracy. So that is, I think, clearly missing in their approach. Another thing that I don't see is, for example, federalism, right? We have a fairly federal structure where state governments have independent authority to, to manage the law and order and so on. So how can you take random cases spread across states and then pass judgment on the central government? So that is another aspect which is completely missed out. Now, if you say that, democracy is on the decline in the last 5-6 years, just on this one count of federalism, right? I mean, there have been no cases of Article 356 being misapplied and, duly elected governments being dismissed. Not even one case. So these are things that are not reflected in these models and frameworks. So that's another problem or a gap that I see. Where most of their focus is largely what they call liberal democracy, which is, I think, about freedom of press and checks and balances. So their whole idea is that, how adversarial is the Supreme Court, how obstructionist is the Supreme Court. Only then it is liberal enough. Otherwise, we're probably not liberal enough for them. Right? I think that those are where the problems lie. So what should be the response, right? And I feel that it's not enough to write these articles or have long tweet threads. I don't think that will solve the problem. What we need is a very institutional approach. I think that way, I think it's a great initiative that you've taken, that the foundation is seized on this the issue, because the response has to be
institutional. And the approach has to have academic rigor. So in fact, when we did this research report, that was one question to me, that how should we put this out there, right? Because if it becomes a Prasar Bharati or a Doordarshan report, nobody is going to read it. So the Sarkari, it will be considered a Sarkari report. Which is why we said, we'll publish it in a peer-reviewed journal, and we'll not link it to Prasar Bharati in any way. And that got it then its legitimacy. And the other interesting thing is now, because it is published in a peer-reviewed journal, it also appears on Google Scholar and other places, so others can cite it, Yes. right? So it creates a much wider body of knowledge. I think that is what we need to aspire for. Create an ecosystem where think tanks, fellows in various universities, academic scholars, they come together and build on this body of work, and that becomes an authentic reference point. Because today our problem is that there is no authentic reference point, right? And it's all anecdotal. It is individuals reacting. So one very interesting platform that I saw recently was the Stanford Encyclopedia of Philosophy. It's very brilliantly organized, very rigorous, cross-referenced, and a whole body of knowledge. Something like that has to be built for India and Indian democracy, I think, where all these aspects are brought out in a very rigorous way, where it's very hard for them to, because these things stand on themselves. They are not a Sarkari project, they are not a BJP project. They are based on their own merits and strength, and that then maybe becomes the basis for new indices of democracy, new frameworks, which uniquely reflect what is unique about India and Indian democracy. So I think that's broadly what I had in mind in terms of thoughts that I wanted to share. So happy to hear reactions and questions. I think you have actually covered a lot. And especially this I think this point that you ended with, something very very interesting and challenging also. I mean, we have more or less, many of us have gone through the Stanford encyclopedia website. So something like that for Indian democracy, and I think this is one major contribution that you have done in terms of trying to deflect, trying to counter the narrative, is to get this printed in a peer-reviewed journal. Because that's where they keep debunking. So you don't have a peer-reviewed counter to it. And creating of an ecosystem. And you mentioned also BBC and DW. I remember the DW, they took that interview, that exclusive, suddenly, while that entire CA thing was going on, Arundhati Roy's interview. And where she just glibly said that there's a genocide, it's a genocidal thing going on in India. Everything is genocidal. Everything is genocide. But then when you ask them to define and come to brass tacks, then they have no answer. But that was a pointer into how these global media conglomerates are also investing in India. So thank you so much. I think it's a very interesting keynote remarks that you made, and it has triggered a lot of our thinking to take this forward. Thank you. आनंद जी, अभी आपका और शशि ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है. मुझे लगता है ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. इसको अगर हम सस्टेन कर सकते हैं तो. सबसे पहले मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने ये आयोजन किया, और शशि जी और हर्षवर्धन जी जैसे साथी वक्ता को आपने इसमें आमंत्रित किया है. भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बोलने का हक पश्चिमी मीडिया को है या नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए. वो तो भारत की अवधारणा को लेकर भी ये कहते हैं कि ये राष्ट्र नवराष्ट्र है और ये 1947 के बाद बना और ये हुआ. वो ये भूल जाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः. तो भारत तो तब से है हमारा, और ये डॉक्यूमेंटेड है. ये कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिसको लेकर किसी को शक या शंका की बात होनी चाहिए. मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब वो रिलीजियस हार्मोनी की बात करते हैं हमारे देश को लेकर, उनके अपने यहाँ इतने हेट क्राइम्स होते हैं. और शशि ने ठीक कहा कि जो स्केल उनका है और जो स्केल हमारा है,
उसमें जब उनको सुविधा होती है तो वो नंबर्स दिखाते हैं और जब उनको सुविधा होती है तो वो परसेंटेज में दिखाते हैं। मई 2021 में उन्होंने NYT में, अगर मैं ठीक हूँ जहाँ तक मुझे याद है, कि एक रिपोर्ट छापी उन्होंने कि भारत में 3.5% लोग वैक्सीनेटेड हैं और US में 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं। इसमें चालाकी क्या की उन्होंने कि US में दिखाया कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं और इंडिया के होल पॉपुलेशन में 3.5% वैक्सीनेटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये होशियारी समझ में आती है पाठकों को, खास तौर पे जिस पाठक वर्ग को आप कर रहे हैं। लेकिन जहाँ नहीं समझ आती है, जब आप ग्लोबल उस पर आप बनाने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से डेमोक्रेसी को लेके उनको क्या पता कि हमारे यहाँ जनपदों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, अस्सक, अवंती, गांधार, काम्बोज, ये 16 जनपद हमारे यहाँ तब से हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की परंपरा आज की नहीं है अमेरिका की तरह। और जब विदेशी आक्रांता हमारे देश पे आए तब भी हमारी लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी थी कि पंचायतों में न्याय व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के हिसाब से ही चलती थी। लेकिन लोग भूल जाते हैं, क्योंकि और कुछ लोग CR की तरह हमारे देश में भी हुआ करने वाले हैं, जो उनके जिनका नाम लिया अभी नरिमान जी ने, मैं नहीं लेता उनका नाम, क्योंकि जो लोग कश्मीर को भारत का अंग ही नहीं मानते हैं उसको हम अपने नैरेटिव में क्यों महत्व देते हैं। जो मीडिया हाउस भारत कश्मीर के बारे में लिखता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसके बारे में क्यों चर्चा करें हम। लेकिन चर्चा इसलिए करना आवश्यक होता है कि उसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। हमारे देश में भी उसने अपनी एक छद्म साख बनाई हुई है कि उसने ऐसा कहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। मुझे याद पड़ता है कि जब इमरजेंसी का दौर था और तो लोग BBC ही सुनते थे, क्योंकि मीडिया जो नेशनल मीडिया थी, जिसको दूरदर्शन आदि कहा करते थे, उसकी कोई साख ही नहीं थी और बाकी मीडिया को सप्रेस कर दिया गया था। तो लगता था कि BBC पे जो समाचार आ रहे हैं उसी की साख है। तो उस समय जो साख बनी उसको लेकर अभी तक चल रहे हैं और भारत में ही उनको ग्रोथ मिल रहा है 150%, जैसा शशि जी ने बताया, है ना। तो इस ग्लोबल ग्रोथ उनका माइनस में जा रहा है। तो इसको समझना चाहिए कि वो मुनाफे के लिए भारत की छवि को खराब करते हैं। और सिर्फ वही नहीं हो रहा है, एक अभी हाल फिलहाल देखा आपने, 2-3 फैक्ट चेकर है अपने देश में सो कॉल्ड, उनको नोबेल प्राइज दिलवा रही थी एक मैगजीन, टाइम नाम है उसका। बताइए, मतलब इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका, और जब उनको मौका मिलता है तब वो भारत के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। BBC ने भी आर्टिकल किया। वही मैं तो एक ही देखा, सबने किया, उसी को फॉलो किया, उसके ट्वीट को। जबकि नोबेल प्राइज में 50 साल के रिकमेंडेशन को सार्वजनिक नहीं करने का नियम है और अब तक की उनकी परंपरा भी यही कहती है। लेकिन हमारे देश के जो वोक एलिमेंट्स थे, जिनको बड़ा खूबसूरत सा नाम अमेरिकन मीडिया ने दिया है, उन्होंने इतना फैला दिया और बहुत सारे लोग डर भी गए कि शायद मिल भी जाएगा उनको। सन्नाटे में थे 2 दिन तक, प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो प्रतिरोध नहीं कर पाने का डर है ना, इसको दूर करना इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है, मुझे लगता है। ऐसे ही आप देखिए कि एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसमें जून 2021 में एक स्टोरी छपी फ्रंट पेज पे, भारत का नक्शा और साथ में कोबरा। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। पूरी स्टोरी क्या है कि केरल में एक पति अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। वो पत्नी से बदला लेने के लिए उसके कमरे में एक कोबरा छोड़ देता है और कमरे को बाहर से बंद कर लेता है। कोबरा पत्नी को काट लेता है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये एक छोटी सी खबर है क्राइम की, ठीक है। हमारे यहाँ कोई इसको सिंगल कॉलम में भी नहीं छापेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये परंपरा बनाई गई कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, तो उस अवधारणा को चूंकि ये सूट करता है, इस वजह से फ्रंट पेज पे ये खबर मिली। और इस खबर को
चाइना के अखबारों ने, गल्फ न्यूज़ ने और जितने इस तरह के भारत विरोधी एक इकोसिस्टम है मीडिया हाउसेस का, उन्होंने प्रकाशित किया कि भारत में अब भी ऐसी स्थिति है कि सांप कटवाकर लोग अपनी वाइफ को मारते हैं। ये उनकी स्थिति है। वैक्सीन को लेके ऐसा ही दुष्प्रचार किया। जब उनसे भारत की वैक्सीन की सफलता नहीं बची तो उन्होंने NYT ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी 21 मई 2021 को, शायद जहाँ तक तारीख मुझे याद है, लेकिन मई 21 की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 700 मिलियन जो है वो कोरोना से प्रभावित है। 700 मिलियन, मुझे तो कैलकुलेटर पे जोड़ना पड़ा कि कितना होता है, तो पता चला वो 70 करोड़ की बात कर रहे थे, हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन। और उसमें भी उन्होंने इस तरह, और वो ये कहते कि हम इसमें जो 70 करोड़, वो 3.5% की बात में वो कहते थे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा लिया है हमने, लेकिन जब इसमें उनसे काउंटर किया गया कि इसमें क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा लिया, नहीं, वो गवर्नमेंट का डाटा तो फर्स्ट है, उसमें हम गवर्नमेंट का डाटा नहीं ले सकते। सो जो हमें सूट करेगा वो हम परसेप्शन के आधार पर करेंगे, और जो हमें सूट नहीं करेगा उसको हम फैक्ट के आधार पर करेंगे। तो ये जो फॉरेन मीडिया का एक इस तरह से है, वो एक बड़ी ऐसी चीज है जिसको लेकर हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो स्नेक चार्मर्स वाली कहानी बताई, उसको हमारे हिस्टोरियंस ने, मैडम बैठी हैं, इनको बहुत, मतलब हम सब लोगों से ज़्यादा इनको पता है कि वो जो एक हिस्टोरियंस का कबाल था, मैं जानबूझ के ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ, कबाल, वो फेवरेट शब्द। हाँ तो वो जो A.L. बेसम से वंडर दैट वाज इंडिया की पहली पंक्ति से शुरू होता है, वो एक बड़ी लंबी रेखा रामचरण शर्मा, D.N. झा, सुबीरा जायसवाल, इनसे वो होते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंचती है। एग्जैक्टली। तो भारत के लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, खैर ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की औकात नहीं है कि ये हमारी डेमोक्रेसी को कुछ कर सके, डेंट जरूर छवि को पहुंचाते हैं वो गाहे बगाहे। जैसा कि हमने CAA के समय देखा, पूरा देश को उद्वेलित कर दिया उन लोगों ने। पूरा देश क्या, मतलब गल्फ न्यूज़ से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके सब जगह बड़े बड़े छप रहे थे कि मतलब क्या नागरिक अधिकार छीन लिए। आप किसी से पूछ लो भैया ड्राफ्ट कहाँ है, किसी ने देखा? किसी के पास ड्राफ्ट नहीं था। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में एक कहावत है, कौवा कान लेके भाग गया। तो कहते हैं कि कान नहीं देखने की बजाय लोग कौवा के पीछे भागते हैं। तो फॉरेन मीडिया का हाल यही है, वो कान नहीं देखते हैं, फैक्ट नहीं देखते हैं, वो कौवा के पीछे भागते हैं। क्योंकि कौवा के पीछे भागने से उनको इंटरनेट मीडिया पे हिट्स मिलते हैं, और हिट्स उनके इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, वो उनके मुनाफे से जुड़ा हुआ है। भारत की अगर शक्तिशाली भारत की छवि प्रस्तुत करेंगे वो, तो हो सकता है लोगों को ठीक नहीं लगे, लेकिन भारत को अब मुझे एक कार्टून भी अच्छा याद आ गया। एक कार्टून छपा किसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में, 2014 की बात है, जब हमारा मंगलयान सफलतापूर्वक हुआ था। तो सारे जो मंगल पे जाने वाले कंट्री थे उनके सारे लोगों का दिखाया, और उसमें एक दरवाजा बंद कर दिया, और सामने गाय लिए हुए एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के नॉक कर रहा था दरवाजे पे कि इंडिया इज ट्राइंग टू इंटर दिस एलीट क्लब। तो ये तो मानसिकता है उनकी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसको ये हमारे लिए मनोरंजक भी होता है कभी कभी, हालांकि उसको बाद में वो वापस लेना पड़ा कार्टून। तो ऐसी स्थितियां हम लोगों को पैदा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है, जो हिट्स हैं हमारे पास, उस पर अटैक करना होगा, क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल जो है वो इन्हीं हिट्स से आता है। तो अगर वो भारत विरोधी छवि को प्रस्तुत करके मुनाफा कमा के उस मुनाफे का प्रयोग भारत के खिलाफ ही कर रहे हों, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पर रेगुलेटरी कुछ भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शशि जी बेहतर बताएंगे, अभी जिस तरह से कुछ प्रयास आरंभ हुए हैं, बहुत लंबा समय लग रहा है। OTT, मैं फिल्म का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे
OTT पर भी उस तरह की चीजें नजर आती हैं। सिर्फ मैं एक पाताल लोक सीरीज का उदाहरण देता हूं, वो भी इंडियन डेमोक्रेसी को डिमीन करता है। उसमें क्या कहता है कि वो आएंगे, एक थाना दिखाया जाता है, थाने के बाहर एक मुस्लिम फैमिली बैठी हुई है और ऐसे रोज आती है, रोज चले जाता है। तो एक व्यक्ति पूछता है ये क्यों बैठे हैं? अरे इनकी सुनता कौन है, सरकार में इसकी सुनने वाला कौन है? अब आपने टोपी दिखाई, दाढ़ी दिखाई, नहीं बोला मुसलमान, लेकिन बगैर कुछ बोले हुए आपने चित्रात्मक छवि ऐसी पेश कर दी कि जिससे ये संदेह का वातावरण बनाया कि भारत में इस वेशभूषा के लोगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। फिल्मों में आप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि वो आएंगे, मुक्काबाज फिल्म में एक डायलॉग है, एक पंक्ति का मैं हमेशा कोट करता हूं इसको, वो आएंगे तुम्हारी हत्या कर देंगे और भारत माता की जय बोलकर चले जाएंगे। What you are trying to say, what you are trying to convey, आप यही कहना चाहते हो ना कि भारत माता की जय बोलने वाले अकारण किसी की हत्या कर रहे हैं। तो इन नुआंसेस को पकड़ के हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा और जो भारतीय भाषाओं की ताकत है उसको हमें संगठित रूप से फॉरेन मीडिया के खिलाफ उपयोग में लाना पड़ेगा। हम भारतीय भाषाओं के अपने वेबसाइट्स के जरिए या वो जो विदेशी मीडिया जो भारतीय भाषाओं में लेकर आ रहे हैं, अब ट्विटर है, वो ट्विटर स्पेस करना शुरू हुआ तो तमिलनाडु में इतने लोगों ने उसको देखा कि उसने उसके लिए एक अलग से बटन क्रिएट किया, है ना। तो वहां जाके हमें उनका प्रतिकार करना पड़ेगा। हमें उनका प्रतिकार उन्हीं के माध्यम का उपयोग करते हुए उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी बातें दर्ज करानी पड़ेंगी। लेकिन फिर वही है कि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से हमारे साथ रही हैं, होती रही हैं इस तरह की चुनौतियां, और जब जब भारत सबल होने का प्रयास करता है तो इस तरह की शक्तियां उसको पीछे खींचने में लगती है। और ये मैं पिछले बहुत सालों से मैं जिस अखबार में काम करता हूँ, जब हम लोग एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, बहुत बड़ी खबर छपी कि पता नहीं गंगा किनारे कितनी लाशें जलाई जा रही हैं, बहाए जा रहे हैं, ड्रोन से तस्वीर ली गई और पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने उसको छाप दिया। तो हमारे एक संपादक ने याद दिलाया कि सर पिछले साल भी इतनी ही लाशें बह के कानपुर के गंगा स्थान पे आई थी, मेरे पास वो फोटो है। हम लोगों ने दैनिक जागरण में उस फोटो को प्रकाशित किया था कि ये पिछले साल की तस्वीर है और ये इस साल की तस्वीर, और फिर कानपुर से लेके बक्सर तक हमने ये पूरी पड़ताल करके सीरीज छापी थी कि इस तरह से मत दिखाओ, क्योंकि ये हमारी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसमें हम लाश को गंगा में बहा देते हैं। तो जैसा अभी शशि जी कह रहे थे कि जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा भारत की परंपराओं का, तो आपको तो ऐसे ही लगेगा, वो रिवर में 50 डेड बॉडीज, तो आपको लगेगा कि ओ ये तो कोविड वाले ही है। आपको पता ही नहीं है कि भारत में किस संप्रदाय के, किस जाति व्यवस्था के या किस समुदाय के लोग लाश को जलाते नहीं है बल्कि उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। कोशिश तो करो, लेकिन चूंकि आपको डेस्क पे बैठ के स्टोरी क्रिएट करनी है और आपके दिमाग में स्नेक चार्मर वाली आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका लालन पालन उसी माहौल में हुआ है, तो आपको वही सुटेबल लगता है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से भारत को बदनाम करने की साजिश होती रही है, और जब तक हम उनके मन मुताबिक काम करते रहते हैं, जब तक हम पूरे दुनिया में जिस तरह से कम्युनिस्टों का जाल था, आज ये अकारण नहीं है। मैं बार बार अनिर्बान जी को कहता हूं कि NSD चले जाइए, चेखव का नाटक रोज वहाँ अभिनीत होता है, कालिदास का नाटक कभी नहीं होता। ये कौन सा मतलब ये है? आपको इतने विदेशी उदाहरण मिलेंगे, मैं हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो किसी भी हिंदी की किताब में मतलब देरीदा का विखंडनवाद आ जाएगा, पता नहीं किस किस का नाम अजीबोगरीब सब लेते रहते हैं। अरे भाई, भारत की ज्ञान परंपरा में वही है ना कि अब आप धर्मनिरपेक्षता को अगर सेकुलरिज्म से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, आप रिलीजन को अगर धर्म बना के समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। यही दिक्कत है।
भारत को समझने के लिए भारतीय दृष्टि चाहिए, और यहीं पर पश्चिमी मीडिया से चूक होती है, वो समझते भी नहीं है। और प्लस मैं इस मंच से उनकी मंशा पर प्रश्न उठाता हूँ, क्योंकि उनकी मंशा, वो टॉर्च बियरर ऑफ फोर्थ स्टेट कहते हैं अपने आप को, कि मीडिया की स्वतंत्रता का बहुत, और स्वतंत्रता और न्यूट्रलिटी का बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जितना बायसनेस दिखता है, मैं 50 उदाहरण जिस अखबार का कहें विदेशी मीडिया का, 1 महीने में पढ़ के आपको फैक्ट के साथ बता सकता हूँ कि इन्होंने गलत किया है वो। और ख़ास तौर से जो इनको लग रहा है कि थ्रेट है कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, इसको किसी तरह रोको। हमें भाई बाजार तो उतना बड़ा ही है, अगर भारत का उसमें अंश बढ़ेगा या शेयर बढ़ेगा, वो हर्षवर्धन जी इकोनॉमिक्स के आदमी वो बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक औपनिवेशिक मानसिकता तो है ही है, दूसरा बाजार पर अपना कब्जा करने की, ताकि इनको स्नेक चार्मर बता के उसी तरह रखो और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करो। तो श्रेष्ठ साबित करने की जो ये मंशा है, इस पर मैं सवाल उठाता हूँ, और उन सारे मीडिया हाउस को आज इस मंच से कटघरे में खड़ा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आपका वाणी अविरम रहे ना, उसका यही Very eloquent, very eloquent. आप जब बोल रहे थे, आई थिंक यू हैव ब्रॉट इट आउट वेरी स्टार्कली द चैलेंजेस, और संध्या जी ने काफ़ी इसको लेकर लिखा भी है। ये जो टर्म हमने यूज़ किया है सिपॉइज, तो मैं 3 उदाहरण, आप जब बोल रहे थे, एक तो है वो गंगा में लाशों का वो वाला जब चला, तो गुजरात के ही कवि ने कविता लिखा उसको लेकर, गंगा में बहते हुआ लाश, और कैसे, सो दे हैव a wide network of sepoys in India, from where they derive a lot of support and information also. Number 1. Number 2, इसी स्पेसिमेन में ये लोग हैं, जैसे गाम्बिया के राष्ट्रपति ने खुद अपने भाषण में कहा कि ये 66 deaths, हाँ, was E. coli death of infants. There was no cough syrup involved. उसका न्यूज़ नहीं चला, पर इंडियन कफ सिरप पी के लोग वहाँ बच्चों का मौत हुआ, ये इंडियन मीडिया ने चलाया एक सेक्शन सिपॉइज। और तीसरा किस्म है वंदे भारत, थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, वाह, अब हाँ, मतलब वंदे भारत के आगे गाय आ गई, वैसे तो जैसे स्वर्गलोक में पहुंच गए एग्जैक्ट। सो सीधे। यू सी द आइडिया इज दैट it is a larger that you stymie the entire narrative of an India rising, of an India which can be self-reliant, which can create its own new age infrastructure. You hit that narrative, and so you are happy कि बफेलोज के साथ हुआ तो उसका सामने वाला निकल के आया, पर 24 hours में वो फिर से on the track, it was back on track. That doesn't make that much news. So you are absolutely now, I think we have come to a very pinpointing of the agendas. और अभी I will request Harshvardhan ji to make his observations and remarks also as we near the end of the discussion. धन्यवाद डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी। एक तो ये विषय ऐसा है कि जिस पर मुझे लगता है कि हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं, और मैं भी जब शशि जी को सुन रहा था, फिर अनंत जी को सुन रहा था, तो मैंने कुछ ऐसे ही बैठे बैठे पॉइंट बनाना शुरू किया। तो वैसे तो ये विषय ऐसा है जिस पर हम में से ज़्यादातर लोग किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं वो पॉइंट बनाने लगा तो मुझे लगा कि 2-3-4 घंटे की बहस उस पर हो सकती है, चर्चा हो सकती है। Actually, yes. क्यों हो सकती है? क्योंकि दरअसल हम लोग किसी एक सिरे को पकड़ रहे हैं तो उसके बगल बगल में एक पूरा गोला तैयार हो जा रहा है, सर्किल तैयार हो जा रहा है। और अभी टाइम मैगजीन की बात की, नोबेल पुरस्कारों की बात की, और गंगा में लाशों की बात की। तो अब गंगा की बात करते हैं तो मनोज राजन जी बैठे हैं कानपुर से, संयोगवश मैं प्रयागराज से, और प्रयाग में भी चूँकि जिसको कहते हैं ना कि हमारा घर, तो हम लुढ़क जाएं अपने घर से तो गंगा में गिरेंगे, 500 मीटर भी नहीं। और जिस जगह की बात की गई श्रृंगेरपुर फाफामऊ की, वो हमारे घर से 30 किलोमीटर। अब 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक रिपोर्ट वो है कि कोई बड़ा रिपोर्टर आएगा जो किसी वेस्टर्न मीडिया पब्लिकेशन का होगा, वो भारत देखने चलेगा, भारत में कोविड के टाइम पे चलेगा, और उसको ये लाशें दिखेंगी तो उसको रिपोर्ट बड़ी नेचुरल है, बड़ी स्वाभाविक है। लेकिन भारत के मीडिया हाउसेस के जिनके
एडिशंस हैं, जिनके वहाँ रिपोर्टर्स हैं, जिनके वहाँ संपादक हैं, जब वो उसको एंडोर्स करते हैं तो ये वाला मसला खतरनाक हो जाता है। जो मीडिया बायस है, जो नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया क्रिएट करता है। दूसरे रिपोर्टर वो हैं जो नया रिपोर्टर है, जिसको संपादक ने कहा कि टाइम्स में छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया, वॉशिंगटन पोस्ट में छप गया, रिपोर्ट लेके आओ। तो वो वहाँ जाके लोकल लोगों से बात करता है, उनकी कहानी छापता है, फोटो खींचता है, और उसके आधार पर जो हमारा अपना देसी मीडिया है, घरेलू मीडिया है, उसमें वो स्टोरी एस्टेब्लिश करता है। मैं नाम नहीं लूँगा अखबार का क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। लेकिन वो रिपोर्टर जिसको समझ ही नहीं है गंगा की किनारे की, वो रिपोर्टर जिसको पता ही नहीं है, और मैंने तो उसी वक्त जब बरखा दत्त भी पहुंच गई और उन्होंने भी नाव कर लिया और वो कहीं कि हम देखिए किनारे किनारे कर रहे हैं, तो संयोग उस वक्त मैं इलाहाबाद में ही था। तो मैंने वहीं से कहानी की और पूछा कि संगम से लेकर फाफा मऊ तक का ये जो पूरा इलाका है, वहाँ आप अगर एक लाश किसी जगह किसी रेती में गड़ी हुई दिखा दें, एक लाश, लेकिन जब फाफा मऊ से आगे बढ़ते हैं जिस रेलवे ब्रिज के किनारे की, तो वहाँ सामान्य दिनों में भी, और जो अनंत जी ने कहा, दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के संपादक आशुतोष शुक्ला ने बाकायदा कहानी लिखी थी कि क्या क्या कौन कौन सी जगह पे होता है। श्रृंगेरपुर में आज भी आप जाएंगे तो वो कुछ संख्या में लोग दिख जाते हैं। कुछ की परंपरा है, कुछ की आर्थिक स्थिति नहीं होती, कुछ लोग मानते हैं कि गंगा में जाएंगे तो वो सीधे मोक्ष की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाएंगे। अब ये नैरेटिव अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे, अल जजीरा में छपे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे, तो हम लोग को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो मूर्ख लोग हैं, विवेकहीन लोग हैं, शून्य समझ रखने वाले। लेकिन अगर भारत का कोई बड़ा पत्रकार भारत का मीडिया हाउस कर रहा है तो हमें उसकी चिंता होनी चाहिए, उसको काउंटर करना चाहिए, वेस्टर्न मीडिया को कोट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब हम कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मेरा ये मानना है, और ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज जो ये बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है, हाउ वेस्टर्न मीडियाज बायस अगेंस्ट इंडिया कैन बी करेक्टेड, ये शशि जी का लेख जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा। अब मैं इस पे कहता हूँ कि 5-6 नाम आप याद कर लें। यूनाइटेड नेशंस, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल अवार्ड्स, वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न थिंक टैंक, इनको आप देखने का नज़रिया बदलिए, तभी ये जो वेस्टर्न मीडिया का बायस है भारत के अगेंस्ट, वो करेक्ट हो सकता है। वरना अगर आप उनकी रिपोर्ट के हवाले से कुछ देखेंगे तो आपको हमेशा मुश्किल होती रहेगी। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है, मैं उसको उस रिपोर्ट के हवाले से ही कुछ 1-2 बातें करूँगा। अभी आई है IMF की रिपोर्ट। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसके पॉइंट्स निकालकर, और भारत में डिलीवरी सिस्टम को आज भी कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन मार्क खड़ा करें। कमाल की बात यह है कि उसी IMF के डायरेक्टर एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट हैं कृष्णा श्रीनिवासन, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज स्लोइंग, इन दैट कॉन्टेक्स्ट इंडिया इज doing better and is in a relative bright spot compared to the other countries in the region। भारत के कितने मीडिया हाउस ने इस बात को उठाया, और उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो 2021 में 8.5% की ग्रोथ थी, वो 22 में भी 6.8% रहेगी। और 6.8% कब रहने वाली है? जब दुनिया के सभी देशों की एवरेज ग्रोथ रेट बिलो 3% होने वाली, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा और ज़रूरी है, जब हम कोविड की बात करते हैं, और कोविड के समय में हम कहते हैं कि कैसे अलग अलग देशों ने, चूंकि हम डेमोक्रेसी नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो डायलॉग प्लस डिलीवरी, मेरे नज़र में डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो लीडरशिप है वो कितना डायलॉग कर पाती है, यानी डायलॉग करेगी तो ये 2 वे प्रोसेस होगा, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, नहीं तो वो तो फिर मोनार्की हो जाएगी, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो कितनी बात करते हैं और उनकी बात के आधार पर कितनी डिलीवरी करते हैं, इसी से ट्रस्ट आता है, इसी से जो बीच में लोग होते हैं वो आउट होते हैं। वही डिटर्मिनेशन है, वही आपका डेडिकेशन है जो डिलीवरी को एक कहे कि उस जगह पे पहुंचाता है। कैसे वो फर्क पड़ता है? पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री, वो कहाँ से चुनाव लड़ते थे? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था शिवगंगा, लोकसभा के सांसद थे। संयोगवश 2014 तक, जब तक मैं रिपोर्टिंग करता था, और चूंकि 2010 में जब CNBC आवाज़ मैंने छोड़ा, तो एक समय मन हो गया कि नहीं, अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करेंगे। उसी वक्त तय कर लिया था जब मुंबई से मैं दिल्ली आया, लेकिन कुछ वजहें हो गई, घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया,
तो फिर मैंने कहा क्या करें, क्योंकि फ्रीलांस जर्नलिज्म करते बड़ी मुश्किल होती थी, 40,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं कुछ दिन और काम करते हैं। तो उसी वक्त एक ऑफ़र आया और एक चैनल था, तो उसमें मैं करीब 5 साल रहा बिजनेस एडिटर के तौर पर P7 न्यूज़ चैनल में। तो मेरा जिम्मा यही होता था, क्योंकि जनरल न्यूज़ चैनल था तो बिज़नेस के आदमी को बहुत दिक्कत नहीं होती थी, आसानी से हम खबरें करते थे, आसानी से बैठते थे। तो 2 जगह हम खूब जम कर बैठते थे, एक जगह होती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरी जगह होती थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। अब आप में से कितने लोगों को ध्यान में होगा कि उस वक्त डायनेमिक प्राइसिंग की शुरुआत हो रही थी और मीडिया की खबर का बड़ा हिस्सा इसी पर जाता था कि आज कितनी कीमतें घट रही हैं, आज कितनी कीमतें घट रही हैं, जो ग्लोबल बास्केट है उसमें क्या कीमत है, सिंगापुर से खरीद रहे हैं, क्या ओपेक कंट्रीज करेंगी, कैसे होगा। इसी पर जो हमारा पेट्रोलियम बीट का रिपोर्टर होता था उसका जीवन इसी पे जाता था। उसी वक्त मोन्टेक सिंह अहलूवालिया वो नीति आयोग में थे, उपाध्यक्ष थे। तो उन्होंने क्या एक कहा, वो योजना आयोग था उस वक्त, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि 10 लाख से ऊपर की आमदनी वाले को एलपीजी सब्सिडी नहीं देंगे। और चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चाहते थे, सबका बैंक खाता खोल देना चाहते थे। मैं डेमोक्रेसी नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, डायलॉग प्लस डिलीवरी। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक चाहती है कि उसका नेता उससे झूठ नहीं बोले, ट्रस्ट बने। और जब वो एक पैसा निकाल कर दे रहा है तो वो कहाँ पहुंच रहा है। अब राजीव गांधी वाला बयान बार बार क्या बताना कि 1 रुपए में 85 पैसा तो गायब हो जाता है, नहीं डीलर ले जाते हैं, जो बीच वाले होते हैं वो डीलर गायब हो गए। अब ये डायलॉग प्लस डिलीवरी का मसला ये कि शिवगंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वित्त मंत्री चिदम्बरम खाता नहीं खोल पाते हैं, स्कीम फ्लॉप हो जाती है, यूपीए के समय में खत्म हो जाता है वो किस्सा, और कहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। जो आज जनधन खाते को कह रहे हैं कि ये तो बड़ी खराब स्कीम। दूसरा, जैसे ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने वो प्रपोजल मूव किया, तुरंत मीडिया चैनलों ने, टीवी चैनलों पर फ्लैश हुआ और उसके 2 घंटे बाद सरकार का स्पष्टीकरण आ गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। ये क्या था, क्योंकि ये डर था पिछले दरवाजे से स्कीम्स को लागू करने की कोशिश, चूंकि आप डायलॉग कर ही नहीं रहे, आप पब्लिक से बात कर ही नहीं रहे, उनके बीच में भरोसा नहीं। आज चूंकि हम जो बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर हम कुछ भी कह लें, सीधे सीधे बात करने की जरूरत है। ये 8 सालों के लिहाज से ही सारी डेमोक्रेसी डेंजर में है, सारा कुछ नैरेटिव गड़बड़ है, तो वो बात करने की जरूरत है। तो 8 सालों में क्या हो गया, 2014 के बाद इस देश में 10 लाख से ऊपर वालों ने अपने आप सब्सिडी छोड़ दी, अपने आप छोड़ दी। मोर देन 36 करोड़ जनधन खाते खुल गए, और जिनको कहा जा रहा था कि इन जनधन खातों से होगा क्या, उन जनधन खातों के जरिए जब कोविड का टाइम आया तो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को, जिनको डेमोक्रेसी में कहा जाता है मार्जिन पे लगे खड़े लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जिनके पास कोई तरीका नहीं है, ये कहाँ आपको किस जगह नैरेटिव में छपा हुआ दिखा। और अगर वेस्टर्न मीडिया नहीं छाप रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वेस्टर्न मीडिया की जो अनंत जी ने शब्द इस्तेमाल किया उसको, और हैसियत नहीं है भारत को जज करने की, एसेस करने की हैसियत में नहीं है वो, उनकी आदत ही नहीं। वो 30-32 करोड़ के अमेरिका को जज करते हैं, एसेस करते हैं, जहाँ सब दुनिया भर से लूटा हुआ माल है। वो उस ब्रिटेन को जज करते हैं, एसेस करते हैं, जहाँ पहले से सब कुछ है। वो उस यूरोप की बात करते हैं जहाँ लोग नहीं है। अब वो जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो वहाँ इमैनुअल मैक्रोन पैदा होते हैं, वहाँ इटली में नई प्राइम मिनिस्टर आती है तो बोलती है। भारत इन चुनौतियों से आफ्टर 1947 एवरी डे जूझ रहा है, और उसके बाद हमारी डेमोक्रेसी की ये ताकत है, हम ये डिलीवर करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी आज ये कहती है दुनिया में कि सबसे बड़ी समस्या होगी तो कहाँ देखना है, भारत की तरफ देखना है। कैसे, जब ये कहा गया कि सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट की वजह से दुनिया भर में हर तरह की समस्या होने वाली है, दवा की, टेक्नोलॉजी की, कार की, मोबाइल की, जो अस्पताल है उसमें लगने वाले उपकरणों की, और यहाँ तक कि हमारे मीडिया की उस वक्त आपको हेडलाइंस याद नहीं होंगी, वेस्टर्न मीडिया ने एक स्टोरी की कि भारत में तो लोग तड़प तड़प कर इसलिए मर जाएंगे क्योंकि यहाँ तो वेंटिलेटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो वेंटिलेटर बनाने वाली टॉप 20 कंपनीज हैं उसमें से ज़्यादातर चाइना में हैं, और वेंटिलेटर में 1000 तरह के जो सामान लगते हैं उसमें से ज़्यादातर यूरोप से आते हैं। जो हमारा एपीआई है, जो दवा हमें चाहिए, वो तो सब कुछ आता है चाइना से या दूसरे देशों से आता है। और कहा गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, बावजूद इसके कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा फैक्ट्री हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास वो ताकत थी।
लेकिन ये नैरेटिव खड़ा कर दिया गया और एक फियर साइकोसिस पैदा हो गई। दुर्भाग्य ये कि वेस्टर्न मीडिया करता तो कोई बात नहीं, हमारे अपने बड़े बड़े संपादक टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहे थे, वो भूल गए कि अगर चाइना दुनिया भर से छोटी छोटी चीजें मंगा के असेंबल कर सकता है तो हमारा अहमदाबाद का कारोबारी कैसे नहीं करेगा। अहमदाबाद के कारोबारी में 5 लाख में बना के दिखा दिया, और जब वो बना के दिखाया और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब मीटिंग ली गई तो उसके बाद ये जो कंपनियां थी, जो कार कंपनियां थी, इन्होंने कहा कि हम बना के दे देंगे भाई, इसमें फर्क क्या पड़ता है, वो चीज हम बना रहे थे, थोड़ा हम चेंज कर देंगे उसको। इतना ही नहीं हुआ, जब भारत ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमको दवा नहीं मिलेगी, हमारे पास वैक्सीन नहीं आएगी, हम लाइन में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे, कह रही है तो कहीं है ही नहीं है, बुकिंग नहीं कराई है, कितना कुछ कहा गया उस वक्त। पता चला कि जब वो कह रहे थे बुकिंग नहीं कराई गई है, तब हमारा ICMR, हमारे देश की कंपनियां और सीधे PMO की मॉनिटरिंग में, उस वक्त मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री गए और कहे कि वो हैदराबाद जाएंगे, कृष्णा अल्ला के यहाँ, वो जाएंगे पूनावाला के यहाँ, तो उस वक्त कहा गया ये इवेंट मैनेजमेंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। जब 3,500 करोड़ की क्रेडिट लाइन खोल दी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो देरी से किया गया फैसला है। हम लोगों ने जिस तेजी में इस बड़े मसले को सॉल्व किया, ये दिखाता है कि चाहे वो डिक्टेटरशिप चाइना हो या डेमोक्रेसी का आवरण ओढ़े छद्म लोकतंत्र वाले अमेरिका और यूरोप हो, ब्रिटेन हो। 700 रुपया हमारे यहाँ का स्वास्थ्य का खर्च है, 700 पर पर्सन। 10,000 रुपया खर्च करते हैं यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग। इटली में 7,000 रुपया खर्च होता है। अस्पतालों में लाइन लगी रही, लाशों की कतार लगी रही, और JCB से अमेरिका में लाशें खोद खोद कर वहां तक ले जाई गई। वो दृश्य ऐसे थे जिसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नहीं छापा। और अच्छा है, हम नहीं देखते, हम बुरा कम देखते हैं। हम कहा जाता है ना कि हम लोग थोड़ा बुरा कम देखते हैं, लेकिन ये सब हम देख रहे थे। और दुनिया ने देखा कि जब अमेरिका में कोविड खत्म हुआ तो पता चला कि वहां के किसी गवर्नर ने एक रूल लगाया था, दूसरे गवर्नर ने दूसरा रूल लगाया था, तीसरे गवर्नर ने तीसरा रूल लगाया था, और दे आर नॉट रेडी टू शेयर देयर रिसोर्सेज। भारत में केंद्र सरकार जब तय करती थी तो वो ये नहीं देखती थी फेडरल स्ट्रक्चर में कि राजस्थान में वैक्सीन भले उन्होंने गाड़ दी जमीन में, लेकिन राजस्थान के किसी व्यक्ति को वैक्सीन मिलेगी ये तय हो जाता था, उसका कोटा उसको मिल जाता था। और मुझे लगता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी के तौर पर कैसे हम डिलीवरी के, जिसको कहते हैं ना, पीक पे पहुंच जाते हैं। और वो डिलीवरी हमें याद है, बार बार स्नेक चार्मर की बात कर रहे थे अनंत जी। अंतरराष्ट्रीय मैगजीन्स में क्या होता है, आपने कितने लोगों को याद है, पुरानी जितनी खबरें छपती थी तो उसमें भारत में दीवार पर पेशाब करता हुआ एक शख्स जरूर दिखता था, और उस पर लिखा होता था यहाँ पर पेशाब करना मना है। बड़ी सामान्य सी चीज है, स्टीरियोटाइप था वो। और ये भारत के लिए एक पक्की वाली पिक्चर थी। कहीं भी खींच लो, कोई भी आया, BBC का फोटोग्राफर आया, अरे भैया भारत में इतना कुछ है, कहीं और अच्छी तस्वीर खींच लो, नहीं वो वही वाली खींचेगा। वो दिल्ली से लेकर किसी एकदम किनारे के इलाके तक जाएगा तो वही खींचेगा। वो नैरेटिव उसको मिलना बंद हो गया, उसको कश्मीर का नैरेटिव मिलना बंद हो गया। BBC ने तो बाकायदा 7 डेज की प्रोग्रामिंग कर दी थी, बाकायदा 7 डेज की प्रोग्रामिंग कर दी थी हर दिन। लेकिन अब क्या करे, अब वहां फोटो खींचने जाता है तो उसको गो बैक इंडिया, इंडिया गो बैक जैसे नारे नहीं मिलते। अब उसकी मुश्किल है। और उसके साथ किसका गठजोड़ हो जाता है यहां पर आकर, जो भारत में बैठे कुंठित लोग हैं, जिनको लगता था कि हम डेमोक्रेसी में गवर्न करते हैं, हम तय करते हैं। मैं पत्रकार हूं, धीरे धीरे 2.5 दशक हो ही गया है, और मैं ये मानता हूं कि पत्रकार बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पत्रकार जिस दिन ये भ्रम पालने लगे कि हम सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, नेता बनाते हैं, इसका मतलब कि वो अपने जो काम वो कर रहा है उसके साथ धोखेबाजी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और ऐसे बेईमान पत्रकारों ने उस वेस्ट के फ्रॉड नैरेटिव को भारत में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। और वो स्टैब्लिश करने का प्रयास किया कि उनको नहीं दिखता कि जब दुनिया बिलो 3% हो गई, हम 6.8% है, 8.7% है, फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% हमारी GDP ग्रोथ है। हम दुनिया के सबसे बड़े, और जब मैं सबसे बड़े कह रहा हूं तो चाइना हमसे पीछे छूट रहा है, हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर होने जा रहे हैं। अभी हमारा हिस्सा कितना छोटा है, एक छोटा सा आपको आइडिया बताता हूं। जब iPhone 5 SE का बेंगलोर में उत्पादन शुरू हुआ तो उस वक्त कहा गया कि कितना लेके आएंगे, तो मोबाइल चला बंद हो गया। अभी भारत में iPhone XR बनता है, iPhone 11 बनता है, iPhone 12 बनता है।
और अभी वर्ल्ड ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ चाइना में प्रोडक्शन शुरू हुआ। विद इन अ मंथ भारत की जो कंपनियां हैं जिनका एप्पल के साथ करार है, वो भी आईफोन 14 और आईपैड बनाना शुरू कर रही हैं। और बनाना शुरू कर रही हैं तो उसमें ज्यादातर यानी मोर देन 30% कंपोनेंट, यानी इनको जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर मतलब जो उनको सप्लाई करेंगे, कोई भी एक इंडस्ट्री बसती है तो कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आती है तो सब तो बना नहीं, लेकिन छोटे छोटे कलपुर्जे देते हैं वो बना के, वो सब कुछ यहाँ तैयार हो रहा है। लेकिन इस नैरेटिव को वेस्टर्न मीडिया बाय नहीं करता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका अपना, उसका बना बनाया एक जो साम्राज्य है। और मैं एक बात यहाँ और कहूँगा, हमारे लिए खतरा ज़्यादा है, हमारे लिए मुश्किल ज़्यादा है। शशि ने कहा ना कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूशन के तौर पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने में इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना शुरू कीजिए, इस पॉइंट्स को लिखना शुरू कीजिए, इन पॉइंट्स की बात करना शुरू कीजिए। आप सोचिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में सप्लाई चेन का कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट चीफ आके कहता है कि भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूनिलीवर आके कहता है भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब गूगल के पास तो कोई रास्ता ही नहीं। अगर वो कहते हैं कि हम भारत में 6800 करोड़ रुपए हमने कोविड के दौरान भारतीयों को कमा कर दिए, तो भैया आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए दुनिया में कोई और जगह ही नहीं। तो ये विन विन सिचुएशन उनके लिए है, हमारे लिए भी है। लेकिन क्या उनके प्लेटफॉर्म पर हम अपने नैरेटिव को पुश कर पाएंगे? बिल्कुल पुश कर रहे हैं। 68% का कंटेंट हमारी भारतीय भाषाओं का है। अंग्रेजों की तरह वर्नाक्युलर नहीं बोलना है, हमारी भारतीय भाषाओं का 68% कंटेंट है। और जब YouTube की चीफ भारत में आती है तो वो बताती है कि 2016 में 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाले 3 लोग थे यूट्यूबर। आज कितने हैं? आज वो संख्या 500 से ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हम नैरेटिव बना नहीं रहे हैं, हमारे नैरेटिव के आधार पर दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। बस हमको ये देखना है कि हम कौन से आंकड़े कहां इस्तेमाल करेंगे। जब कोई बताए तो उसको बताइए कि IMF के अभी के एशिया पैसिफिक डायरेक्टर या क्रिस्टीना लगार्डे जो पहले चीफ थी, उन्होंने क्या बोला था? भारत अकेला नक्षत्र, ऐसा चमकता हुआ तारा है जो पूरी दुनिया के अंधकारमय आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है। इस नैरेटिव को हम क्यों नहीं अपने आप बाय कर पाते, क्यों नहीं हम उसको कह पाते? और मैं बार बार कहता हूं कि हम वेस्ट मीडिया का क्या कर लेंगे? उन लोग जेफ बेजोस के पैसे से चलेगा तो ठीक है, भारत में कहेंगे किसके पैसे से चल रहा है। ये कमाल की बात है। और कमाल की बात यह है कि एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जिस NDTV की बात होती है, डॉक्टर रॉय तो ज्यादातर समय बाहर बैठे होते हैं, देश में तो होते ही नहीं है। ऐसे लोग भारत का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो जमीन पर उतरते हैं ना, तो क्या होता है? उनको हर घर में उज्ज्वला गैस दिख जाती है। वो जाते हैं तो कहते हैं भैया ये घर अभी मिला है। और मैं आपको एक घटना बताऊं, 2017 के चुनावों के तुरंत बाद, थोड़े दिनों के बाद की बात है, मुझसे किसी ने बनारस से कहा कि अरे सर आप लोग तो पत्रकार हैं, बड़े आपके जुगाड़ होते हैं, हमारा घर टूट गया। उसने अपने घर की तस्वीर भेजी तो सचमुच उसका घर किसी लायक नहीं था। मौर्या जी थे। उन्होंने कहा कि कुछ अगर हो जाए तो थोड़ा ये जो घर मिल रहा है इसमें थोड़ा लाइन आगे लग जाती है हमारी। हमने जो भी संभव था, बहुत ऐसे संपर्क हम लोगों के होते नहीं, लेकिन जो भी संपर्क था उनको मैंने भेजा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो भिजवाया उसको पूरे डिटेल के साथ। वहाँ से क्या जवाब आया? 2011 सेंसस के आधार पर इस देश में शौचालय, इस देश में प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इस सब की डिलीवरी हो रही है। तो भैया ये 2014 के बाद ये पैरामीटर सेट नहीं हुए। और उसके बाद कहा गया कि न तो DM, न तो CM, न तो PM इस पैमाने को बदल नहीं सकता है। जिसका नंबर पहले है उसी का नंबर मिलेगा। ये संभव नहीं है कि आप जुगाड़ लगाकर आगे बढ़ जाएं। अब ये डेमोक्रेसी को डेंजरस तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि एकदम खतरनाक तरीके से पीड़ा में डालता है। क्योंकि जिन लोगों को आदत थी कतार में लगना नहीं है, उनको तो दिक्कत होगी, वो तो इस नैरेटिव के खिलाफ होंगे। इसीलिए वो उस वक्त भी खिलाफ हुए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी बारी आने पर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। घर अपनी बारी आने पर मिलेगा, देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बारी आने पर करेगा। बताइए ना, VIP कल्चर खत्म हुआ या नहीं? और ये डेमोक्रेसी अगर नहीं है, इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सिर्फ ओल्डेस्ट नहीं हैं, सिर्फ लार्जेस्ट नहीं है, हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दुनिया हिल जाती है। क्योंकि उसके लिए ये बात सुनना समझना ये बड़ा खतरनाक तरीके से, क्योंकि उनकी तो सारी दुकान बंद हो जाएगी,
सारा नैरेटिव जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के जरिए उन्होंने क्रिएट किया, खड़ा किया, जिसके आधार पर उनकी सारी दुकान चलती है, वो कॉन्फ्लिक्ट से डेमोक्रेसी चलाते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध होता रहेगा तो हमारे हथियार बिकते रहेंगे, रशिया यूक्रेन में एक के साथ खड़े रहेंगे। भारत कहता हम दोनों में से किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन हमारे हित सबसे ऊपर होंगे। यूरोपीय यूनियन गैस लेता रहेगा, अमेरिका गैस लेता रहेगा, उनको डॉलर देता रहेगा रशिया को, और कहेगा कि नहीं भैया तुम डॉलर में खरीद मत करो। क्यों नहीं खरीदते रहेंगे? और इसीलिए जब डॉक्टर एस जयशंकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहते हैं कि भाई जितना हम महीने भर में नहीं लेते हैं, उससे ज्यादा 1 घंटे में तुम डॉलर सप्लाई कर दे रहे हो रशिया को, वो कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर दुनिया की कल्पना करते हैं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, वेस्टर्न मीडिया लपक लेता है। उसको लगता है अरे वाह, ये तो रशिया के खिलाफ, यानी उनको वही बात ठीक लगी जहां किसी के खिलाफ कोई खड़ा होगा। और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक शब्द है फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5, इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं। देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री जी नीति नहीं है, नीति में स्थिरता नहीं है, हम आज कुछ तय करते हैं आपकी पॉलिसी बदल जाती। कौन था प्रधानमंत्री? बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी हो गई थी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि जो लास्ट में खड़ा आदमी है, जिसको हम कहते हैं ना कि सबसे आखिर में खड़ा हुआ, जो दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन कहता है, वहां खड़ा हुआ आदमी, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे आगे वाले कुछ गड़बड़ कर देंगे या हमारे पीछे खड़ा आदमी कतार तोड़ के आगे चलाएगा। ये हमने कठिन से कठिन समय में इन 8 वर्षों के दौरान होता हुआ देखा। हमने इसको नोटबंदी के समय में भी देखा, हमने इसको कोविड के समय में भी देखा। और जो नैरेटिव की बात है, वो कहते हैं कि सीए का प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट, देखिए ये तो कोई रोक नहीं सकता है। लंबे समय से वो इसी से पुष्पित पल्लवित होते रहे, उनका जीवन इसी से है, लेकिन वो कमजोर हो रहे हैं, वो बुरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। वो अगर अपने नैरेटिव पुश करने की स्थिति में नहीं है, तभी वो वेस्टर्न मीडिया के शरण में जा रहे हैं। इसको इस तरह से भी देखना शुरू किया। हम दुनिया को नहीं देखते हैं, हमें भारत इतना चमकता हुआ दिखता है कि हम दूसरे को नहीं देखते हैं। हम चमक रहे हैं इसलिए दुनिया हमको देख रही है, और उसको लगता है कि उसकी चमक न फीकी पड़ जाए, इसलिए वो ये नैरेटिव सेट कर रही है। अब एक बात, ये खुद 5 अगस्त 2019 कश्मीर अब मिलता नहीं है। कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटा, तो संयोगवश 10 और 11 सितंबर को हम लोग कुछ पत्रकारों के साथ गए श्रीनगर। वहां तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक, आपने तभी कार्यक्रम कराया तो बड़ी अच्छी बात हुई, IIC में हुआ था। सत्यपाल मलिक जी से हम लोग मिले। अब आज सत्यपाल मलिक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। हम लोगों ने पूछा कि क्या आगे होगा, तो उनका पेट खराब था, बहुत परेशानी में थे, वो उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, और ऐसे यूँ करते हुए बोले हमें क्या करना है, हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, जो कुछ हो रहा है सब वहीं से हो रहा है। ये कहने वाला आदमी बताता है कि हमने कश्मीर में सब बदल दिया। अब इस नैरेटिव को आप किससे काउंटर करिएगा? उन्होंने जो लाइन बोली वो मैं दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि ये मुझसे प्रधानमंत्री जी तो बोलने आए नहीं, ये सत्यपाल मलिक ने हमसे राजभवन में बोला था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर, हम उसे लेंगे, लेकिन वो वहां के लोग इस कश्मीर की चमक देखकर अपने साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं। वो यह युद्ध का युग नहीं है, सिर्फ पुतिन को नहीं बताते। अब इससे खूबसूरत डेमोक्रेसी का उदाहरण क्या होगा? और इसीलिए 24,000 करोड़ से 70,000 करोड़, यानी अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले का इन्वेस्टमेंट और उसके बाद का इन्वेस्टमेंट। आप बताइए डेमोक्रेसी और क्या होती है? और डेमोक्रेसी यानी सबसे नीचे से। अब ये वेस्टर्न मीडिया ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद खूब नैरेटिव गढ़ा। क्या इतनी स्टोरी जाए? क्या अल जजीरा में आया क्या कि DDC के लोग कौन थे? क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा क्या कि 22 से 25 साल के लोग कैसे लाइन लगाकर वोट दे रहे थे? कैसे 25-26 साल के, ठीक 25-26 साल के लड़के लड़कियां वो DDC चुनकर आ गए। वो बाकायदा उसमें अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको नैरेटिव सेट है, जो लंदन में जाकर रुक जाते हैं, जिनके यहाँ फार्म हाउस पर जाकर कश्मीर में देश के ज्यादातर पत्रकार जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बगले में श्रीनगर में गुलमर्ग में रुकते थे, उनकी दिक्कत हो गई ना। नैरेटिव नहीं मिल रहा है, वो उनके मुंह से नैरेटिव सुनते थे, और उसी नैरेटिव के आधार पर भारत को कश्मीर बताते थे। मुझे लगता है कि ये एक कहें कि ऐसा विषय है कि जिसपे अलग अलग विषयों पे बहुत लंबी बात हो सकती है, और मैं तो कहूँगा कि सेगमेंट वाइज बात कीजिए। जब हम कहते हैं ना कि क्यों इस नैरेटिव से प्रॉब्लम है,
दुनिया भर में भारत इस तरह से कभी देखा ही नहीं गया। हम अपने कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन सब मामलों में वर्ल्ड लीडरशिप में हैं, हम पीछे नहीं है। हम सब में अगर कोई एक उदाहरण पेश करने की बात होती तो भारत का नाम आता है। और उदाहरण के साथ, और ये सब कुछ इन 8 वर्षों में बहुत मजबूत हुआ है। इसीलिए मैंने पी चिदम्बरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया का उदाहरण दिया, क्योंकि वो बड़ा जरूरी था समझना। और एक और छोटी सी बात, जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो डेमोक्रेसी मतलब क्या? पब्लिक कैसे देखती है? पब्लिक ऐसे देखती है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर बाहर जा रहा है तो चाइनीज राष्ट्रपति से कैसे मिलता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, देहाती औरत नहीं याद दिलाना चाहता मैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसको हम, पन्ने गायब हो जाते थे। आप सोचिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के पहले फॉरेन मिनिस्टर का पन्ना गायब हो जाता तो कुछ और पढ़ाता था। ये भी भारत का रहा है। और आज क्या होता है, डॉक्टर एस जयशंकर किसी मंच पर खड़े होते हैं तो उनके अलावा किसी और की बात हेडलाइन नहीं बनती। समरकंद में जब हम गए, उससे पहले क्या हुआ, चाइनीज आर्मी कहती है कि हम तैयार हो गए भैया, हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वैंग यी, चीन के विदेश मंत्री भारत आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से साफ मना हो जाता है, उनको साफ साफ बताया जाता है कि जब तक सीमा विवाद में आप पीछे नहीं जाएंगे तब तक प्रधानमंत्री मिल नहीं सकते। समरकंद में शी जिनपिंग चाहते थे कि हर हाल में मुलाकात हो, और ये डेमोक्रेसी की ताकत है, क्योंकि उनको पता है कि एंडोर्समेंट अगर भारत का नहीं मिलेगा तो वेस्ट उनके खिलाफ वैसे ही खड़ा है और उनकी कोई स्थिति नहीं है। आज की तारीख में अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बुरी तरह से परेशान है चाइना। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ा वर्ग है जो बारिश कहीं, छतरी कहीं, और वो पुराना वाला मसला अभी भी चलता है, इसीलिए जब समरकंद के बाद दुनिया की हेडलाइन बनी तो क्या हेडलाइन बनी? मोदी इग्नोर्स शी इन समरकंद। ये हेडलाइन है। ये हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अगर कहा तो वो डिलीवरी होगी। यानी सेनाएं पीछे गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात नहीं की। साफ साफ कहा गया ये हमारे एजेंडे में नहीं था। और ये एजेंडे में नहीं था तो कई लोग कहते हैं ना, ये अक्सर है, अनंत जी ने तो बाकायदा अमेठी पर एक पुस्तक लिखी हुई है, तो डेमोक्रेसी की बात जब करनी हो तो अमेठी जरूर घूमिए, और अभी का अमेठी और पहले का अमेठी देख के आइए। हम तो 99 वाले में भी गए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को लगाया था और गोविंदाचार्य एक बड़ा सा रथ लेकर भी गए थे स्वदेशी में, तो वो भी उसमें हम वहाँ थे। तो उस वक्त कहीं भी जाएं तो 4 लोग मिलते नहीं तो कहते थे हमारी बहू है भाई, बेटी है, इसको कैसे हरा देंगे। और वो जो बहू बेटी थी उन्होंने क्या किया, आप रायबरेली और अमेठी वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं देख सकते। ज़्यादातर काम संजय गांधी के समय में आए, उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश तो की लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। गेस्ट हाउस तक वहाँ ढंग का नहीं था, अब की स्थिति में नहीं जानता, अब इधर मैं हाल में गया नहीं हूँ, लेकिन रायबरेली वाले रास्ते से गुजरता हूँ, 2 ही चीज़ दिखती है, एक सारस का गेस्ट हाउस और दूसरा फिरोज गांधी के नाम पे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट दाएं हाथ पे। क्योंकि हमें तो हर दूसरे चौथे उसी रास्ते से जाना होता, हमारा तो घर है ना भाई प्रयाग, तो ये हर दूसरे चौथे जाना है। तो ये भी डेमोक्रेसी नैरेटिव है, आप लोग बात करते हो तो ये भी ध्यान रखें। और इसी डेमोक्रेटिक नैरेटिव की वजह से भारत में चुनाव दर चुनाव मत प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया में हर जगह निराशा है, हर जगह के अरे कहाँ जा रहे हैं हम, क्या करेंगे। अब वहाँ तो लोगों को किसी भी तरह से आशा नहीं होती, यहाँ तो परिवार है, समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, अपने मंदिर हैं, विरासत है, सब कुछ हमें चमकता दिख रहा है। वहाँ सब कुछ उन्हें निराशा की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि भारत में डेमोक्रेसी मजबूत होती है और हर बार वोट परसेंटेज बढ़ता है। आपने सुना कि हाल के वर्षों में कि वोट परसेंटेज कभी घट गया? वोट परसेंटेज बढ़ता है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 1989 के बाद हाईएस्ट है, सीट हाईएस्ट है। लगातार 2 बार इस तरह से क्लियर कट मेजॉरिटी कभी किसी को देश में अपने नाम पर मिली ही नहीं। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो तो भरोसा उस कांग्रेस पार्टी का था जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसमें कौन नहीं था। अभी बार बार नैरेटिव करते हैं, उसमें मैं कभी फिर लंबी बात करूंगा कि उसमें कौन नहीं था और फिर क्यों अलग अलग बातें करते हुए कहते कि नहीं नहीं वो वाली कांग्रेस। अरे भैया कुछ नहीं तो 32 बार तो कम से कम कांग्रेस टूट चुकी है।
और ये तो कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस इंदिरा थी जिसको आगे किया गया, जो पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ने के लिए कुख्यात थी। और अभी शशि जी ने उसको एक लाइन में कहा, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि अनिर्बान जी तो चाहेंगे कि आज ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए, बावजूद इसके राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है। जबकि सच है, मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे बहुत फोन आते हैं क्योंकि जो एक नया काम जिसको अनिर्बान जी ने कहा कि यूट्यूबर भी हैं, तो बंगाल से लोग फोन करते हैं और एक समय में तो इतनी पीड़ा में लोग फोन करते थे कि अरे कोई सुनने वाला नहीं है। आप सोचिए क्या देश में कभी हुआ क्या किसी राज्य के लोगों को निकल कर जाना पड़ा, वहां डेमोक्रेसी डेंजर में थी, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया? अभी जो दंगे हुए मोमिनपुर में, खिदिरपुर में, इकबालपुर में, क्या हो, कितने लोगों ने रिपोर्ट किया? मुझे लगता है ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, उस नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में मैं वेस्टर्न मीडिया के बायस को बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ध्यान ही नहीं देता हूं, वो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जो हमारा अपना मीडिया है जो खुद बायस करता है, वेस्टर्न मीडिया के बायस के आधार पर यहाँ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता है और उसमें अवार्ड्स, उसमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, और वो तब रिपोर्ट नहीं मानेंगे जब कहेंगे कि भैया मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में 70% प्लस रहने वाले लगातार कोई एक अगर नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब कहते करें नहीं ऐसे तो कोई भी रिपोर्ट कर देता है, ऐसे तो कोई भी एजेंसी चला लेता है। लेकिन अगर कोई छोटी सी भी रिपोर्ट भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आ जाए तो तुरंत उसको कहते हैं कि इससे बड़ा क्या होगा। अब उनसे पूछो भैया अल्पसंख्यक हैं डेमोक्रेसी में, बताओ कौन सी स्कीम है इस गवर्नमेंट की जो मुसलमानों को अलग देखती हो, हिंदू को अलग देखती हो? नाम रख के कोई स्कीम आई हो तो बता दीजिए, नहीं मिलेगी आपको। और मुझे लगता है कि इस तरह से जो नैरेटिव है वो हम सबको गढ़ना पड़ेगा। एक आखिरी बात कह के खत्म कर देता हूं क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा ज्यादा लंबा बोल गया, वो विषय कई आ गए थे। तो राजस्थान, कई बार कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ ले रही है, देखिए इसको कर लिया उसको कर लिया। पूरी की पूरी पार्टी अशोक गहलोत खा गए, बहुजन समाज पार्टी 6 विधायक थे, पार्टी रह नहीं गई। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, मान लिया कि वो सब अपने मन से गए, डेमोक्रेसी में आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई विधायक है तो। हालांकि मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म में ये होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म में, कि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसको फिर से चुनकर आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सचिन पायलट उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान है और सोचिए कि कितना खतरनाक होता है, डेमोक्रेसी को ये लोग कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा अगर ये हमारी पार्टी में आ गए, सरकार के साथ हैं, तो इनके विधानसभा क्षेत्र में काम बढ़िया से होगा। उन कांग्रेस के डेमोक्रेसी को देखने का तरीका ये है, इसलिए न तो वो डायलॉग करते हैं, और जब डायलॉग नहीं करेंगे तो डिलीवरी के लिए क्या क्या है वो तो उनको पता ही नहीं है, वो सब कुछ यहाँ से तय करते हैं। और दूसरी तरफ नवीन पटनायक की सत्ता पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जब वहाँ आपदा आती है तो नवीन पटनायक कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस राज्य को आगे बढ़ाने में। आप डेवलपमेंट के साथ कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या डेवलपमेंट को आगे उसके रोड़ा लगाकर, यही है वंदे भारत चलाना चाहते हैं, या वंदे भारत किसी दिन लड़ गई तो उसका वो टूटा हुआ हिस्सा दिखाकर नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं? बस इतना ही, धन्यवाद। दो विषय, एक है कि सेगमेंटेड, इसको आगे बढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव अ सेगमेंटेड अप्रोच आल्सो टू द इश्यूज, और आपने बहुत कुछ इसमें डाला है। एंड आई थिंक शशि जी, यू नो द point that he made right at the beginning, you alluded to it. Simple, just one example, imposition of Article 356. The state and the condition and barometer of democracy, this is one thing. The other point which rang, though I did not demand imposition of Article 356 in Bengal. I did not publicly demand it. Live chal raha hai. The other point is discrimination in development. And I think that culture has completely come to a halt as far as this dispensation is concerned. मिलाकर देख लीजिए पिछले examples and examples today, and I know of this in West Bengal, where if you have not voted for the ruling dispensation, development stops at your doorstep, at the entrance of your mohalla or your gully, because they know you have not. So I think these are less reported aspects. 49 बार लगा है प्रेसिडेंट, 49 बार, 49।
So I think that is a very stark and clear. Those who have read, who are students and experts of post-independent India's democratic history. So thank you so much. मुझे I think we have gone on for quite some time. आपके पास 5 मिनट हो गए तो थोड़ा आप निकलेंगे. Sandhya I ji just wants want to make make a a अच्छा. few करके, comments. and then One, I've been a grassroots reporter. I began that way. So I had to speak for my community. I think the media was given a very, just starred as it is, as if it's a monolith. You have to divide it. They are the proprietors on top and they are the journalists below. And do not think that the journalists are plugging their own agenda in the anti-India stuff that you are reading and reporting. This has to be being driven from the top, and that is an area that we should be looking at in future. I don't need to emphasize that further. You know, when we were reporters and we went to Meerut or Muzaffarnagar for all those riots, Ahmedabad riots I covered, those, sometimes you would get somewhere a hint that, ये ऐसा था क्या? I said, no sir, जो मैं देख के आई हूँ मैं तो वही लिखूँगी. And there was no twisting of the narrative at that level. This is the 80s. So there is a media then and there's a media now. Proprietors are now in the picture. First it was only editors who could have a bias, and they would leave you if you resisted. Or the chief reporter would say something and you resisted and you got away with it. Now there is a proprietorial bias. They have interests and connections that we have not looked at when we are doing this kind of analysis, and we need to look at that. Second, I just wanted to mention the Ganga dead bodies were also an issue of some communities having the tradition of shallow graves, 3 feet deep, and with a flood they would go. This aspect I have covered in my writings. One thing I wanted to say about what you said, I've forgotten. Maybe I'll come back to it. But we have to look at these kind of nuances also. so Let I other think people so. What comment. I'll just in conclusion, I would like to invite at a later stage, to keep giving us your suggestions on the approaches that we need to take in this series, because this is a series, and those suggestions are welcome. Segments that you want us to focus on while generating this narrative, I think that is very important, and we'll again take this up for the next month. Amol Parth has also joined us. I am not asking him today to make observations, but we would definitely like him to join us. I told him to join. Oh, wonderful. Thank you so much. I mean, we would definitely like Amol to join us in our next event that we will have in this series. And we want to really know threadbare his analysis, study his findings and his report, and we would like to hear it from him as well. So I think, Thank so you. formally I thank everyone. Thank you. I just Recording stopped. फोटो खींचेंगे आप थोड़ा पूरा आपके हाथों में पहले ये डाल देता हूँ फोटो हाँ लेट मी विमोचन करना। ये अभी भी है ना विमोचन अच्छा, अरे वाह, कर भी सकते ये हैं। ठीक है, ये अच्छा है, फोटो के लिए ये फैब्रिक ऑफ इंडिया थैंक यू सो मच। ये बढ़िया है। ये आप अभी IIC जाएंगे तो इसको निकाल मत दीजिएगा, नहीं नहीं, पैन के IIC जाएंगे तो निकाल हर्षवर्धन जी शांति जस्ट टेक अ फोटो। मैंने ये किताब खरीदा है पता है? अरे क्यों? अरे सर मैं गिफ्ट करता हूँ अभी आपको। नहीं टू encourage authors we must buy books, you know. थैंक यू सर। आपने लास्ट में कुछ कहा था उसके मैं कोई बात नहीं, फिर याद आएगा तो नहीं बहुत अच्छा आपका मुझे लगा। इधर से निकलेंगे।